بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو شیری ناولز آرک۔ پیش خدمت ہے ناول دیپک کی قسط نمبر 3۔ شام کا وقت تھا۔ ساگر کے اس پار سورج کا سرخ گولا گیند کی صورت پانی کی نقرئی سطح پر تیر رہا تھا۔ اس کے زیر اثر سمندر کا سینہ بھی سرخ دکھائی دے رہا تھا۔ ہواؤں کی شہ پر جب موجیں آسمان کو چومنے کی ناکام کوشش کرتیں تو ایسا محسوس ہوتا جیسے کسی بد نصیب کی چتا کے سرخ شعلے اپنی زبانیں پھیلا رہے ہوں۔ اس پر ایک مرد کا سایہ ایک چبوترے پر نظر آ رہا تھا۔ وہ ان الجھتی ہوئی موجوں میں گم بہت غور سے اپنے ارمانوں کی چتا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی پلکوں پر آنسو ٹھہرے ہوئے تھے۔ لوگوں نے پچھلے کئی دنوں سے اسے اسی طرح یہاں گھنٹوں بیٹھے دیکھا تھا۔ وہ بالکل خاموش رہتا تھا۔ اسے لوگوں نے پشوپتی ناتھ جی کے مندر کی چوکھٹ پر بھی کھڑے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر غم کا اندھیرا ہونے کے باوجود اس قدر کشش تھی کہ ایک بار دیکھ لینے کے بعد کوئی مشکل سے اسے بھول سکتا تھا۔ اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ بھوکا، کمزور اور بیمار سا بھی ہے، لیکن وہ بھیک نہیں مانگتا، نہ کچھ کہتا، نہ پوچھتا۔ اسے صرف اپنی خاموشی ہی سے مطلب تھا۔ اس کی شخصیت لوگوں کی نظر میں کچھ پراسرار سی تھی۔ کسی کو اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ کچھ دیر میں جب سورج کو سمندر نے اپنے اندر چھپا لیا تو ہلکی پھوار پڑنے لگی۔ وہ چونک اٹھا۔ اپنے گندے رومال سے اس نے چہرہ صاف کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اس کے قدم پشوپتی ناتھ جی کے مندر کی طرف اٹھ رہے تھے۔ روز ہی وہ ایسا کرتا تھا۔ سڑک سنسان ہوتی جا رہی تھی کیونکہ اس طرف کم ہی لوگوں کے مکانات تھے۔ وہ چلتا گیا مندر کی جانب۔ گزشتہ راتوں کی طرح یہ رات بھی وہیں گزارنی تھی۔ بارش تھوڑی تیز ہو گئی۔ ہر شے پر جیسے اداسی چھائی ہوئی تھی۔ سڑک کے کنارے لگے درختوں کے نیچے اسے پناہ لینے کی کوئی معقول جگہ دکھائی نہ دی۔ قرب و جوار میں 2 بنگلے تھے، لیکن چوکیداروں کے ڈر سے وہ ان کے اندر جانے کی ہمت نہ کر سکا۔ جب بارش اور بھی تیز ہو گئی اور اس کے کمزور پیر لڑکھڑانے لگے، بھوک سے وہ نڈھال ہو رہا تھا۔ اس سے برداشت نہ ہو سکا۔ چند قدم چل کر اس نے ایک بنگلے کا گیٹ کھولا۔ وہ لون میں آیا تو وہاں کا ماحول بارش میں بھی خوشگوار معلوم ہوا۔ چاروں طرف کیاریاں ہی کیاریاں نظر آ رہی تھیں۔ وہ آگے بڑھا تو عمارت کے صدر دروازے پر چھوٹی سی کار کھڑی تھی۔ برآمدے میں چڑھ کر وہ ایک جگہ بیٹھ گیا۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنی کمر دیوار سے ٹکا لی، آنکھیں بند کر لی۔ اسی لمحے کسی کتے کے بھونکنے کی آواز سے وہ چونک اٹھا۔ کتا اس کی طرف لپک لپک کر بھونک رہا تھا۔ تبھی برآمدے سے لگے ایک کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس کے ساتھ سامنے لون میں دور تک روشنی کی چادر پھیل کر بارش کی پھوار میں سما گئی۔ اندر سے ایک چوکیدار نکلا جس کے ہاتھ میں موٹا سا ایک ڈنڈا تھا۔ چوکیدار کو دیکھتے ہی وہ لرز گیا۔ کون ہے؟ چوکیدار نے گرج کر پوچھا۔ میں ہوں، اس نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ میں کون؟ یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ چوکیدار نے ڈنڈے کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے دریافت کیا۔ کچھ نہیں، بارش کے سبب یہاں پناہ لینے آ گیا تھا۔ چل بھاگ یہاں سے۔ ڈنڈے کو اٹھا کر چوکیدار غرایا۔ یہ بنگلہ تیرے باپ کا ہے؟ جاتا ہوں بھیا جی۔ یہ کہتے ہوئے سہم کر وہ اٹھا، لیکن اس کے پیر کانپ رہے تھے۔ جسم بوجھ بن رہا تھا اور بھوک کی وجہ سے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ ابھی وہ 2 قدم ہی بڑا ہوگا کہ مان اس کا دل جیسے بیٹھنے لگا۔ سہارا لینے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھایا اور خود کو نہ سنبھال سکا۔ لڑکھڑا کر وہ ایک لاش کی طرح برآمدے کی سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا لون میں گر پڑا۔ بارش کی بوچھاڑ اس پر چھا گئی۔ اس کا جسم گیلی مٹی میں لت پت ہو گیا۔ اس پر بے ہوشی یوں چھا گئی کہ گرنے کے بعد وہ ایک مرتبہ بھی اٹھنے کی کوشش نہیں کر سکا۔ اب وہ ہر شے سے بے نیاز تھا۔ جس وقت اس کی آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ سورج کی کرنوں پر روشنی کا نور تھا۔ سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ رات کی طوفانی سیاہی جانے کہاں گم ہو گئی تھی۔ خود کو اس نے ایک ہسپتال میں پایا۔ اس نے اطراف کا جائزہ لیا۔ ڈاکٹر جوان اور خوبصورت تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ پاس ہی ایک لڑکی بھی کھڑی تھی۔ لڑکی کا رنگ روپ بھی ڈاکٹر کی طرح تھا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے بہت غور سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، شاید یہ جوانی کا خمار تھا۔ وہاں 2 نرسوں اور ایک چپڑاسی کو بھی اس نے دیکھا۔ سب پر نگاہ ڈال کر اس نے احسان مندی سے سر جھکا لیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ڈاکٹر نے چارٹ پر اس کا نام لکھنا چاہا۔ دیپک، یہ بتاتے ہوئے جلدی سے بولا۔ آپ اس چارٹ میں میرا نام مت لکھیے ڈاکٹر صاحب۔ کیوں؟ میں یہاں بھرتی نہیں ہونا چاہتا۔
उसने भराई हुई आवाज़ में जवाब दिया। लेकिन क्यों? डॉक्टर ने ताज्जुब से पूछा। तुम्हारी तबीयत तो अभी ठीक नहीं। ये तो ठीक है डॉक्टर साहब, मगर उसके कहने में शर्म दामनगीर थी। डॉक्टर ने बगौर उसे देखा। नौजवान लड़की भी उसकी तरफ देखने लगी। मैं आपके अस्पताल का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकता। बैठने की कोशिश करते हुए उसने कह ही दिया। लड़की मुस्कुरा दी और डॉक्टर हंसकर बोला, हम किसी की मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठाते। तुम यहीं पर अपना इलाज कराओ। जब तक तुम मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त नहीं हो जाओगे, हम तुम्हें हरगिज़ नहीं जाने देंगे। डॉक्टर ने चार्ट पर उसका नाम लिखा और पूछा, उम्र 22 साल, पता कोई ठिकाना नहीं है डॉक्टर साहब। वो मायूस आवाज़ में बोला। मैं हाँ हाँ कहो। डॉक्टर ने उसकी हिम्मत बंधाई। दीपक उस नौजवान लड़की की तरफ देखने लगा। उसकी वहां मौजूदगी में उसे कुछ कहते हुए शायद शर्म आ रही थी। डॉक्टर इस पर कहने लगा, ये मेरी बहन है छाया और मैं प्रकाश हूँ। कल तुम जहाँ बेहोश हो गए थे वो हमारा ही बंगला है। ये हमारा ही अस्पताल है। तुम बिला झिझक कहो क्या बात है। मैं ये कहना चाहता था डॉक्टर साहब, जिस शख्स ने कई रोज से कुछ ना खाया हो, भला उसके रहने का ठिकाना कहाँ होगा। डॉक्टर को अपने ही सवाल पर जैसे शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर उसने दीपक के लिए गरम गरम दूध मंगवाया। खाने को भी अच्छी और मकवी चीज़ें मंगवाई। यूसुफ ने खूब सैर होकर खाया पिया। उसके मुर्दा जिस्म में चुस्ती आ गई और आंखों की चमक मजीद बढ़ गई। अगर आपको कोई काम दिया जाए तो करेंगे? इस बार छाया अपनी सुरीली आवाज़ में बोली। हाँ दीपक, डॉक्टर ने भी तायद की। इससे तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा और तुम इधर उधर भटकोगे भी नहीं। हाँ और क्या। छाया ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। यहाँ काम करने के लिए अपना हुलिया संवारना पड़ेगा। दीवानों जैसी शक्ल नहीं चलेगी यहाँ। जी। छाया की साफ गोई और शोखी पर वो चौंक उठा। डॉक्टर हंस दिया। नर्सें भी मुस्कुराने लगी। डॉक्टर ने कहा, इसकी बात का बुरा न मानना, ये बचपन ही से बहुत शरीर है। दीपक मुस्कुरा कर रह गया। छाया फिर चहकी, सूरत से आप मजनू ज्यादा, पढ़े लिखे कम लगते हैं। वैसे अपनी तालीम के बारे में बताइए तो हम आपके लिए कोई काम धाम सोचें। अरे, दीपक चौंक उठा। अब तक मेरे इम्तिहान का नतीजा भी निकल आया होगा डॉक्टर साहब। आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नतीजा कहीं से मंगवा सकते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं। डॉक्टर प्रकाश ने उसे हैरत से देखते हुए जवाब दिया। आप किस इम्तिहान में बैठे थे? छाया ने उसकी आंखों की चमक को परखा। एमएससी के इम्तिहान में। कोई वजह नहीं कि मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट ना आऊं। डॉक्टर प्रकाश और छाया हैरत ज़दा रह गए। डॉक्टर ने सवाल किया, इतना पढ़ लिख कर भी इस तरह भटकने की वजह पूछ सकता हूँ? होगा कोई प्रेम व्रेम का चक्कर। छाया ये कहकर हंस दी। दीपक को उसकी हंसी अच्छी लगी। कोई दुख जैसे कभी उसने सहा ना था। उसकी जिंदगी कितनी बेपरवाह और बेफिक्र थी। ऐसे खुश नसीब कम होते हैं। वो कुछ नहीं बोला और अपनी नजरें झुका ली। तभी एक नर्स ने आकर बताया कि एक मरीज की हालत बहुत नाजुक है। डॉक्टर प्रकाश उठकर चला गया। दोनों नर्सें भी उसके पीछे पीछे चल दी। दीपक के पास छाया अकेली रह गई। दीपक ने उससे पूछा, आप पढ़ती हैं क्या? जी नहीं, छाया बोली और आगे बढ़कर उसी कुर्सी पर बैठ गई जहां से डॉक्टर प्रकाश उठकर गया था। भैया के साथ यहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ। वैसे यहाँ मेरा दिल नहीं लगता। क्यों? पैरों को समेटकर उसने अपने घुटने मोड़ लिए। मैं गैर मुल्क जाना चाहती हूँ। भैया कोशिश तो कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। शुक्रिया, छाया ने कहा और फिर अचानक संजीदा हो गई। मेरी बात का आपने बुरा तो नहीं माना था? किस बात का? दीपक ने मुतजब होकर पूछा। यही जो मैंने कह दिया कि आपकी सूरत मजनू जैसी है वगैरह वगैरह। दीपक हंस दिया। उसकी हंसी गवाह थी कि उसे छाया की कोई बात बुरी नहीं लगी। छाया के होंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद जब नाई ने आकर दीपक का शेव बनाया तो छाया मुस्कुराते मुस्कुराते संजीदा हो गई। उसे यूं लगा जैसे वो कुदरत का कोई शाहकार देख रही हो। वो खो सी गई। उसके दिल की धड़कनों में इजाफा हो गया। दीपक के नक्शो निगार उसके दिल की गहराई में उतरते चले गए। चंद रोज में दीपक की सेहत काफी संभल गई। चेहरे की शिगुफ्तगी लौट आई। आंखों की मखसूस चमक तेज हो गई। होंठों पर छाए हुए सिसकियों के साए मांद पड़ गए। उसने महसूस किया कि इन सब बातों के पीछे डॉक्टर प्रकाश से ज्यादा छाया का हाथ है। दिन तो दिन, रात में भी किसी दूसरे मरीज को देखने के बहाने वो उसके पास हालचाल पूछने चली ही आती थी। दीपक को अब एक अलहदा कमरा मिल चुका था। अस्पताल के किनारे इस कमरे में 2 खिड़कियां थीं, एक लॉन की तरफ और दूसरी सड़क के उस पार
खामोश माहौल की जानिब खुलती थी। छाया उसके पास आती तो अमूमन वो जागता हुआ मिलता। ज्योति के तस्वुर के सिवा सोचने को और था भी क्या। वो तन्हा होता तो उसकी आंखों में ज्योति का हसीन चेहरा ही घूमता रहता, लेकिन अब उसकी तन्हाई को छाया का सहारा भी मिल गया था। अगर उसे आते देखकर दीपक आंखें बंद कर लेता तो छाया बहुत प्यार से उसकी कलाई थाम कर बुखार देखती, फिर बहुत नरमी से उसके जिस्म पर लिहाफ डालकर चंद लम्हों तक उसे देखती रहती। अपनी बंद आंखों के बावजूद वो छाया की नज़रों को महसूस कर लेता। कई बार छाया ने खुद अपने हाथों से उसकी बेड की चादर बदली थी, उसका मुंह भी धुलाया था। अपने नाजुक हाथों से तौलिया लेकर उसका चेहरा साफ किया तो बहुत नज़ाकत से, जैसे वो अपना चेहरा साफ कर रही हो। छाया उसे खुद दवा पिलाती, सुई लगाती, फिर अपना ख्याल रखने की ताकीद करती जाती। दीपक उसके जज्बात को समझ चुका था, आंखों की चमक और होंठों की मुस्कुराहट का अंदाज़ा लगा चुका था, लेकिन इस बार भी वो खामोश रहा। खामोशी ही में उसने भलाई समझी। डॉक्टर प्रकाश के एहसान का बदला देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। छाया की खिदमत गुजारी पर उसका दिल दुखाना दीपक को बेरहमी महसूस हुआ, लेकिन वो ज्योति को फरामोश नहीं कर सकता था। ज्योति की यादों के सहारे तो वो अब तक जिंदा था। ज्योति की मांग में उसने सिंदूर भरा था, वो तो उसकी जन्म जन्म की साथी थी। उसके तस्वुर से तो उसे बड़ा सुकून मिलता था। छाया जितनी गहरी होगी ज्योति उतनी ही तेज चमकेगी, ये उसे मालूम था। छाया ने भी उसका साथ ना छोड़ने की कसम खा रखी थी। ज्योति को अपने दिल से लगाकर रखने के बावजूद वो छाया से अपना दामन नहीं छुड़ा सका। दीपक में ज्योति के साथ ही छाया का भी वकार था। एक शब्द दीपक अपने कमरे में यूं ही खामोश करवट लिए लेटा था और खिड़की से दूर के अंधेरे को देख रहा था। बारिश की मोटी मोटी बूंदों के पीछे सड़क के किनारे की बत्तियां बुझ गई थीं। निसफ शब गुजर चुकी थी, सिवाय बारिश की रिमझिम के कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। नींद नहीं आ रही क्या? छाया अचानक उसके कमरे में आ गई और पेशानी छूकर बुखार देखने लगी। वो कुछ ना बोला। छाया को इस वक्त देखकर दिल पर एक नामालूम सा खौफ छा गया। छाया आज रात शायद सोते सोते उठकर चली आई थी। शानों पर उसके बाल बिखरे हुए थे, जिस्म पर शब ख्वाबी का लिबास था। दीपक उसे हैरत से देखने लगा। यूं क्या देख रहे हैं आप? वो ये सवाल करते हुए खुद ही शर्मा सी गई। कुछ भी नहीं, उसने कहा और नजरें दूसरी तरफ फेर ली। कुछ तो जरूर था जो आप मुझ में तलाश कर रहे थे। वो दीपक के पास ही बेड पर बैठ गई। एक ज्योति की तलाश कर रहा था, दीपक खोई हुई सी आवाज में बोला। उस ज्योति को छाया में तलाश कर लीजिए, छाया ने कहा। ज्योति अंधेरे ही में मिलती है, दिन के उजाले में नहीं। दीपक ने फिर छाया की तरफ निगाह उठाई। बड़ी बड़ी खुमार आलूद आंखें, दराज पलकें, नकूश तीखे होंठों के उभार में अब पहली सी बेफिक्री नहीं रह गई थी। ऐसा लगता था कि छाया का कुछ खो गया हो और वो उसे ढूंढती फिरती है। पहले जैसी बातें, चमक और लबों पर खेलने वाली मुस्कुराहट कुछ दिन से जाने कहाँ गायब हो गई थी। छाया के रूप में उसने अब भी बहुत कुछ देखा, बहुत गौर से, बहुत देर तक। उसकी आंखों में बनारस की सुबह नजर आई। काली काली आंखों में उसने मरघट की वो तूफानी रात भी देखी जो उसके दिल पर एक अनमिट नक्श छोड़ गई थी। गोरा रंग, खामोश लब, खुले गेसू, तसव्वुरात की एक तस्वीर छाया के पैकर में उसके मुकाबिल आ गई तो हाथ बढ़ाकर उस चेहरे को थाम लिया। प्यार से वो इन आंखों में देखता ही गया और उसकी ज्योति सामने आती गई, बिल्कुल करीब। उसका दिल चाहा कि उस ज्योति को अपनी बाहों में समो ले। शायद वो ऐसा कर भी गुजरता। ज्योति के सिवा उसके जहन और तसव्वुर में कुछ भी नहीं था। तभी पहलू के कमरे से एक मरीज के कराहने की आवाज़ बुलंद हुई और दीपक चौंक उठा। उसने देखा कि वो अपने हाथों में छाया का चेहरा लिए हुए है। छाया ही उसके सामने बैठी है और कोई नहीं। हाथों को झटक कर उसने अलग किया और शर्मिंदा सा होकर नजरें झुका ली। छाया के दिल में अपनी मोहब्बत की मिठास लिए हजारों फूल खिल उठे। बहुत शौकी से उसने हाथ बढ़ाकर दीपक के उलझे बालों को और उलझा दिया और मुसरतों का खजाना समेटती हुई वहां से अचानक उठकर भाग गई। छाया की जो शय खो गई थी, शायद आज रात उसने ढूंढ ली थी। उस रात के बाद छाया का ज्यादातर वक्त अस्पताल ही में गुजरने लगा। अब तो वो जब भी आई एक डॉक्टर से ज्यादा शाख पर खिला हुआ कोई फूल मालूम होती। बनाव सिंगार में भी तब्दीली आ गई थी। रोज नई साड़ियां, बालों की सजावट, लबों पर कामयाबी की मुस्कुराहट, हर बात बदली बदली सी थी। चलती तो इस अंदाज से गोया उसने कोई बहुत बड़ी दुनिया फतह कर ली हो। चलते चलते उसके कदम अमूमन दीपक ही के कमरे की तरफ उठने लगे। वहां पहुंचकर जब उसे अपना मकसद याद आता तो चौंक कर मुस्कुरा देती।
फिर वो दीपक को देखकर वापस चली जाती। दीपक इस अचानक तब्दीली से बाखबर था। वो उसकी वजह भी जानता था, लेकिन चुप ही रहा। उसने बहुत कोशिश की कि छाया के बारे में ना सोचे और अक्सर उसमें कामयाब भी हुआ, लेकिन जब छाया एक हकीकत बनकर सामने आ खड़ी होती तो वो लाचार हो जाता। उसे मुस्कुराकर छाया का इस्तकबाल करना पड़ता, बातों का जवाब देना पड़ता। वो जिस कदर छाया से नजरें चुराता, वो इसी कदर उसके करीब आती जाती। ये उसका अज़म था कि सख्त से सख्त इम्तिहान में भी ज्योति के लिए उसके दिल में बसा हुआ प्यार कम नहीं होगा। ज्योति की मोहब्बत में वो अपनी जान भी दे देगा। छाया से बचने के लिए उसे अकल की ज़रूरत थी, उसके भाई का एहसान, उसकी खिदमत गुजारी का समर। किसी औरत का दिल यूं साफ अल्फाज में तोड़ देना मुनासिब नहीं था। वो सोचता छाया शायद उसकी साफ गोई को बर्दाश्त ना कर सके, उसे दूसरे तरीके से समझाना होगा। जिस तेजी से वो उसके करीब आ जाना चाहती है, उसी तेजी से उसे पीछे धक्का देने से उसका दिल टूट जाएगा। फिर वो उसके बारे में क्या सोचेगी? उसने फैसला कर लिया कि अगर वो चारों तरफ से घिर कर इस इम्तिहान में डगमगाने लगा तो छुप कर यहाँ से भाग जाएगा, कहीं दूर जहाँ छाया का तस्वुर भी ना जा सके। उसे सिर्फ ज्योति से निस्बत है। उसी के तस्वुर में खोकर अपनी ज़ात को घुलाए हुए वो एक फितरी मौत का आरजुमंद था। इसी में उसका हकीकी सुकून था। यही उसकी आरजू, यही अज़म था। एक रात वो इसी तरह उलझनों में खोया हुआ था कि हस्बे मामूल छाया आ गई। बेड पर बैठकर वह मुस्कुराई और दीपक की कलाई थाम कर नब्ज़ की रफ्तार देखने लगी। आप तो अब बिल्कुल सेहतयाब हो चुके हैं, छाया बोली। ये सब तुम्हारी और डॉक्टर प्रकाश की मेहरबानी का नतीजा है। हाँ, है तो ऐसा ही, छाया चमकी। एहसान चुका दीजिए। क्या मैं इस लायक हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, छाया ने कहा और उसका हाथ मजबूती से थाम कर बोली। वक्त आने दीजिए तो हिसाब मांग लूंगी। दीपक ने एक पल सोचा, फिर अपने दूसरे हाथ से छाया का वो हाथ पकड़ लिया जिससे वो उसकी उंगलियों को गिरफ्त में ले रही थी। छाया, वो बोला, क्या तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो? छाया ने शर्मा कर इकरार में सर हिला दिया। लेकिन छाया, तुम्हें नहीं मालूम कि मैं कितना मजबूर हूँ? दीपक जैसे दिल के दर्द से तड़प कर बोला। मेरी शादी हो चुकी है। छाया का दिल जोर से धड़का और दीपक का हाथ उसके हाथ से छूट गया। आंखें नम हो गई और खून की रफ्तार जैसे थम गई। यह हकीकत है छाया कि मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। दीपक उसके दिल की हालत का अंदाजा लगाकर कांप गया। मेरी बीवी मर चुकी है छाया, लेकिन उसका ख्याल मैं अपने दिल से लम्हे भर को भी नहीं निकाल सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मरने के बाद उसकी पूजा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपनी मौत के बाद हम दोनों की रूह जहाँ भी रहे एक साथ रहे। वो बहुत हसीन थी छाया, बेहद हसीन। छाया के दिल में सुकून का एक सोता फूट निकला। लबों पर मुस्कुराहट आने को मचल उठी, मगर मौके की नज़ाकत को महसूस करके खुद पर काबू पा लिया। कुछ देर सोचकर वो बोली, मुझे दुख है कि आपने इस कम उम्र में इतने शदीद गम का बोझ बर्दाश्त किया, मगर कुदरत की मर्जी के खिलाफ कुछ भी तो नहीं किया जा सकता। आपके लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं कि अपनी बीवी को भूल जाएं, उनका गम दिल से निकाल दें। आप नहीं जानते कि ज़्यादा रंजो गम से रूहों को तकलीफ पहुंचती है। उनके गम में तड़पते रहने से उन्हें भी सुकून नसीब नहीं होगा। मेरा कहना मानिए और ज़िंदगी को नए ढंग से नई राह पर डाल दीजिए। अभी आपका कुछ नहीं बिगड़ा है। ज़िंदगी को समझने की कोशिश कीजिए। यूं आसानी से ये उम्र नहीं कट जाती। लेकिन दीपक ने मुखालफत करना चाही, लेकिन कुछ नहीं। छाया गोया पूरे हक के साथ बोली, मैं आपके साथ हूँ। मुझे अपना बनाकर देखिए तो ज़िंदगी की असल हकीकत का अंदाज़ा होगा। फिर छाया ने पूछा, क्या नाम था आपकी बीवी का? दीपक ने ज्योति का नाम बता दिया तो वो कहने लगी, नाम तो बहुत प्यारा है, लेकिन दीपक से ज्योति का साथ सिर्फ रात भर का होता है। दीपक को वो रात याद आ गई जब उसने ज्योति की मांग में सिंदूर भरा था। एक ही रात तो वो ज्योति के साथ रहा था। छाया अपनी बात जारी रखते हुए कह रही थी, अब वो रात बीत चुकी है, फिर भी आप आंखें बंद किए अंधेरे का एहसास करना चाहते हैं। छाया का साथ दीपक से दिन और रात का है। इस वक्त जब दीपक के पास ज्योति हो, और उस वक्त भी जब दिन के उजाले में दीपक बगैर ज्योति को हो। छाया ये कहते कहते जज्बाती हो गई और आपसे तुम पर उतर आई। मगर छाया, ये सब गलत होगा, दीपक ने कहा। क्या गलत होगा? छाया जोर देकर बोली, यही गलत कर रही हूँ कि मैं आपको जीने का रास्ता दिखा रही हूँ, आपका दुख दर्द बांट रही हूँ, आपकी ज़िंदगी में खुशियों के मोती बखेर रही हूँ। क्या यही सब गलत है? मैं आपको प्यार करती हूँ, दिल की गहराइयों से चाहती हूँ,
मुझसे इसीलिए आपकी उदासी देखी नहीं जाती। मैं तो आपके आंसू पोंछना चाहती हूँ और अब आप खुद भी तो यही चाहते हैं। मैं ये चाहता हूँ? दीपक हैरत ज़दा रह गया। हाँ, आप, छाया ने पुरजोर आवाज़ में जवाब दिया। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो क्यों उस रात मेरा चेहरा अपने हाथों में ले लिया था? क्यों इतनी देर तक मेरी आंखों में डूबे रहे थे? क्यों मेरी जुल्फें सवारी थीं? क्या मैं चलती फिरती आवारा सस्ती सी औरत हूँ कि जिसे आपने जब चाहा हाथ लगा दिया, जब चाहा तो हटा लिया? क्या क्या मेरी कोई कीमत नहीं? इज्जत नहीं कि मेरे सहारे आप किसी और के तसव्वुर में खोए रहें? नहीं नहीं छाया, ये बात नहीं, दीपक ने घबरा कर कहा। उसने छाया की आंखों में आंसू तैरते देखे। बात को संभालना उसके लिए जरूरी हो गया। वो बोला, तो मुझे गलत समझ रही हो मैं। और फिर वो खुद ही खामोश हो गया। कुछ समझ में नहीं आया कि छाया को किस तरह मुतमईन करे। छाया को वो रंजीदा भी नहीं करना चाहता था। नीज ज्योति की याद को भी वो किसी कीमत पर भुलाने को तैयार नहीं था। उसने फैसला कर लिया कि वो जल्द ही यहाँ से कहीं दूर चला जाएगा। हाँ, यही मुनासिब होगा। नई खुशियों और नई जिंदगी के लालच से वो जितना भी दूर रहे अच्छा ही होगा। छाया की आंखों के आंसू रुखसारों पर बह निकले। होंठ कपकपाने लगे। पहली ही मोहब्बत में उसे इतनी दिलशिकन नाकामी हुई थी। उसका दिल टूट गया। वो उठकर चलने लगी तो दीपक से रहा ना गया। औरत के आंसू किसे मुतासिर नहीं करते। उसने छाया का हाथ थाम लिया और बोला, क्या मुझसे तुम खफा हो गई? मुझे खफा होने का हक दिया है आपने, छाया ने रुंधी हुई आवाज में कहा और हाथ छुड़ाकर सिसकती हुई कमरे से निकल गई। उसके बाद छाया कई दिन तक कमरे में नहीं आई। वो अपने आप से और दूसरी आजमाइशों से आजाद था। मुसलसल अपनी ज्योति के ख्यालात में डूबे रहने के बावजूद वो जाने क्यों छाया के हक में सोचने पर मजबूर हो जाता। छाया की छाया उसके सफाई जहन पर जैसे चिपक कर रह गई थी। छाया का दिल दुखाकर उसने अच्छा नहीं किया, वो सोचता। उसके एहसानों का बदला क्या यही था? वो सोचता वो तो जो कुछ कह रही थी उसी की भलाई में था। भला छाया को क्या कमी है कि अपनी राह में कांटे बिछाए? ये तो उसकी आला ज़र्फी है जो इतनी बड़ी डॉक्टर, घर की अच्छी और खूबसूरत होने के बावजूद उसका और सिर्फ उसका ख्याल रखती है। अपने सलूक पर वो पछताया। उसने सोच लिया कि अब छाया की कुर्बत से बचने के लिए वो कोई और रास्ता इख्तियार करेगा। लेकिन वो रास्ता हो भी क्या सकता है? हाँ, उसे मनाकर, उसके दिल में से मैल साफ करके वो जल्द ही यहाँ से चला जाएगा। जाना भी चाहिए, वरना कहीं छाया की छाया में आकर उसकी ज्योति मध्यम होकर बुझ गई तो सारी पूजा अकारत चली जाएगी। फिर वो कहीं का नहीं रहेगा। कई बार उसने नर्सों से छाया के बारे में पूछा तो मालूम हुआ कि वो खुशो खुरम है और अस्पताल भी आती है। उसे अब अफसोस होने लगा कि छाया यहाँ आकर भी उससे दूर रहने लगी है। उसने एक मर्तबा महसूस किया कि छाया बराबर वाले कमरे में है। ये भी देखा कि वो उसके दरवाजे के सामने से जा रही है, लेकिन दीपक के पास नहीं आती। यकीनन छाया उससे नाराज थी और दानिस्ता उसे नजरअंदाज कर रही थी। दीपक जब एक रात ज्योति और छाया की बातें एक दूसरे में जोड़ कर तोड़ रहा था तो अचानक छाया उसके पास आ धमकी। वो उसे देखकर उठ खड़ा हुआ। मैं आपसे मिलने आई हूँ, छाया ऐसे लहजे में बोली जैसे अपना सब कुछ हार चुकी हो। कल मैं सुबह के प्लेन से लंदन जा रही हूँ MS करने। उसने छाया के चेहरे पर नाम को शिगुफ्तगी नहीं देखी। हमेशा लबों पर रहने वाली मुस्कुराहट गायब थी। आंखों की चमक की जगह साया सा रेंग रहा था, टूटे दिल का साया। मुझसे जो भी गलती हुई उसे दरगुजर कर दीजिए, छाया ने फिर कहा। उसकी आंखें छलक आई थी। बैठोगी नहीं? वो दिल पर जबर करके बमुश्किल बोला। छाया ने एक पल उसे देखा और लब कांपे। शायद वो बैठना नहीं चाहती थी, फिर भी बैठ गई वहीं उसके बेड पर और नजरें झुका ली। मुझसे इस कदर नाराज हो? दीपक ने कुछ सोच कर उसकी नाजुक कलाई थाम ली। छाया को इस तरह रुला कर जुदा करना उसे अच्छा नहीं लगा। इतनी दूर वो अपने वतन से दूसरे मुल्क जा रही थी। उसकी इतनी सारी मेहरबानियों के एवज उसे आंसू देकर विदा करना इंसानियत नहीं होगी। उसने सोचा, अब तो वो जा रही है, फिर वो उसके लौटने तक यहाँ कब रहेगा? उसे अपनी मोहब्बत की ऐसी सख्त आजमाइश का भी मुकाबला नहीं करना पड़ेगा। मुनासिब यही है कि वो चंद साथ के लिए छाया का दिल रख ले, उससे अपने बर्ताव की माफ़ी मांग ले ताकि छाया फिर मुस्कुरा उठे। बेचारी किस कदर उदास है। इस उम्र में तो लड़कियां मुस्कुराती हुई ही अच्छी लगती हैं। छाया ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि आंखों से आंसू छलक पड़े। मुझे माफ नहीं करोगी छाया? वो बोला तो छाया सिसक पड़ी। दीपक ने कहा, मैं अपने सलूक पर शर्मिंदा हूँ। भला देखो तो तुम्हारे लिए सोचते सोचते मेरी क्या हालत हो गई है।
छाया ने नजरें उठाईं। दीपक में वाकई उसने एक तब्दीली देखी। ऐसा महसूस हुआ कि वो दोबारा किसी मौलिक मर्ज का शिकार हो गया है, फिर बीमार रहने लगा है। वो उसके सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। ना चाहते हुए भी दीपक इस तरह बैठा रह गया। छाया के अनफास की खुशबू उसके हवास में मुहित हो गई। वक्त ने करवट बदली। ज्योति सेहतयाब हो गई। उसने नया लिबास पहना। दोनों खेज कली की मानिंद खिल उठी। उसमें एक नया रूप, नया निखार, नई ताकत ओद कर आई। तन को आज़ादी हासिल हुई और मन को आसूदगी। इन बातों का अंदाज़ा जैसे उसे पहली बार हुआ तो ऐसी मुसरत हासिल हुई जिसके मुतल्लिक कभी सोचा भी नहीं था। जैसे उसे जन्म भर की कैद से निजात मिल गई हो। अपने शहर से बहुत दूर आसमान की खुली छाँव में, कुदरत की इस वसी और इस ज़मीन पर, भगवान के कदमों में उसको ये नई जिंदगी बहुत अजीज थी। अपने घर की तो याद से भी उसे नफरत होने लगी थी। उसका सोतेला मामू, कितनी गंदी आंखें थी उसकी। कल्लू कहीं का, वो सोचती रही। फिर उसे अपनी सोतेली माँ का ख्याल आया। वो तो अपने भाई की हम ख्याल थी। कहती थी इम्तिहान ख़त्म होते ही उसे मामू के साथ गाँव भेज दूंगी, फिर चाहे वो किसी से भी उसकी शादी करवा दे। शादी तक की बात होती तो वो बर्दाश्त कर लेती, लेकिन वो तो खुद उससे बांधे बैठा था। किसी और के हाथ में उसका हाथ थमाने से पहले वो अपने अरमान पूरे कर लेना चाहता था। कितना बड़ा पापी था वो। उसके लिए किसी बूढ़े जिम्मेदार से उसने बात भी कर ली थी। पानी में रहकर मछली कब तक मगरमच्छ से बैर रख सकती थी। अगर उसके वालिदैन जिंदा होते तो किसी को उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत ना होती। खुशनसीबी थी कि बाप का इंतकाल उस वक्त हुआ जब वो BSc में पढ़ रही थी। माँ की याद से उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर भी वो अब बहुत खुश थी। आरजी मौत के बाद ज्योति को एक नई जिंदगी मिली थी। ऐसी जिंदगी जो कुदरत का अतिया थी। इस जन्म में वो अपनी भरपूर अंगड़ाई के साथ जाहिर हुई थी। कंवारी बनकर नहीं, बल्कि सुहागन बनकर। कुदरत उस पर कितनी मेहरबान थी। वो सुहागन है, उसका शोहर जिंदा है और एक रोज जरूर उसकी राख लेने आएगा। किस कदर मायूस होकर वो यहाँ से गया है, लेकिन जब आएगा तो उसे अपनी आंखों पर एतबार नहीं आएगा। फिर वो अपने प्यार, अपनी मोहब्बत का नजराना पाकर खुशी से दीवाना हो जाएगा। वो अपनी नई जिंदगी पर उससे मुबारकबाद लेगी, उसका शुक्रिया अदा करेगी, फिर शब रोज उसकी खिदमत में सारी जिंदगी गुजार देगी। ज्योति यही सब कुछ सोचती रहती। मीरा ने उसे बताया था कि वो बहुत खूबसूरत है। पुजारी ने भी उन्हें हसीन जोड़ा कहा था। लंबा कद, गोरा रंग, चेहरे के खड़े खड़े नकूश बड़े ही दिलनशीन है। आंखों में ऐसी चमक है कि देखने वालों की नजरें ना हटें। उसे पाकर कितनी खुशनसीब है वो। उसका शोहर, उसे नई जिंदगी देने वाला, उसको तमाम मुश्किलात से निकालने वाला। मगर कैसा सितम है कि वो उसका नाम तक नहीं जानती, कभी उसे देख भी नहीं सकी। एक बार उसने कोशिश भी की थी, लेकिन तब वो अपने दोस्तों में घिरा हुआ था। मीरा ने इतनी जोर से मजाक में कुछ कहा था कि आसपास की सभी औरतें उसे देखने लगी थीं। फिर कभी उसने अपने महबूब को देखने की जसारत नहीं की। सोच लिया था तन्हाई में कभी तो उससे बात करने का मौका मिल ही जाएगा। बात न सही, देखने का मौका ही वो ढूंढने लगी, बहुत करीब से, बहुत जल्द ही। लेकिन कैसी बदकिस्मती थी उसकी, ये तमन्ना कभी पाया तकमील को नहीं पहुंच सकी। अब ज्योति को यकीन था कि एक रोज वो इस मानूस अजनबी को देख लेगी जो उसका सब कुछ है। वो आएगा, जरूर आएगा, उसे आना ही है। पुजारी ने उसके शोहर की एक एक बात उसे बता दी थी। कैसे वो आया, किस तरह फूट फूट कर रोया और क्यों वो जान देना चाहता था। ज्योति ने अपने तस्वुर में उसकी एक हसीन तस्वीर बना ली थी। मीरा और पुजारी के बताए हुए नक्शो निगार को उसने अपने दिल में बसा लिया था। ज्योति को फख्र सा महसूस होता कि उसका महबूब उसे इतनी शिद्दत से चाहता है। जब उस सुबह से शाम होने लगती, जब जंगल के साए वक्त से पहले ही अंधेरे में धुल जाते, जब शफक की सुर्खी छुप जाती और जब परिंदे अपने अपने घोंसलों में आराम करने लौट जाते, तो वो बहुत मायूस होकर पुजारी के कदमों में जा गिरती, आंसू बहाती, सिसकने लगती। पुजारी शफकत से उसके सर पर हाथ फेरता, उसे दिलासा देता, सब्र के फल का राज बताता और मोहब्बत के मायने समझाता। ज्योति रोती और सिसकती रहती। तेरा प्यार एक दिन जरूर लौट कर आएगा, जिंदगी है तो उम्मीद है, वो मुझसे वादा करके गया था। ज्योति के जीने का बस एक ही सहारा था, हार। यही वो हार था जो उसके शोहर ने अपने हाथों से उसे अपनाकर सुहागन बना दिया था। वो आईने के सामने जाकर खड़ी हो जाती, अच्छी तरह अपनी नोक पलक संवारती, जुल्फों को आरास्ता करती, मांग में सिंदूर भरती,
آنکھوں میں کاجل لگاتی، پھر گھنٹوں خود کو پرشوق نظروں سے دیکھتی رہتی۔ وہ خود کو عجیب سی نظروں سے دیکھتی، جیسے اسے اپنے وجود پر شک ہو، جیسے اپنی قیمت کو پہچان رہی ہو، اپنے شوہر پرستی کے جذبے پرکھ رہی ہو۔ اپنے گلے کے ہار کو متواتر دیکھتے رہنے سے جب اس کی آنکھیں چھلک پڑتی تو ہار کو چوم لیتی، اس کی سسکیاں مندر میں گونجنے لگتی۔ آزمائش کی یہ گھڑیاں کس قدر دل شکن تھیں، محبت کا یہ امتحان کس درجے کٹھن تھا، جسے دیکھا نہیں، پہچانا نہیں، جانا نہیں، ایک لفظ بھی جس کے لبوں سے وہ نہیں سن سکی، اس کے لیے وہ آج اپنا سب کچھ لٹا بیٹھی تھی۔ اپنے سہاگ کی واپسی کے لیے وہ دعائیں مانگتی، اپنے صندور کی لاج کی دہائی دیتی۔ اسے یقین تھا کہ زندگی کے اس نئے وجود سے وہ کبھی مایوس نہیں ہوگی۔ انتظار کی بھی آخر ایک حد ہوتی ہے۔ جوتی کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو ہی گیا، آس یاس میں دھل گئی۔ جب اس کے دوبارہ جی اٹھنے کی خبر ارد گرد کے دیہات تک پہنچنے لگی تو لوگ اسے دور دور سے دیکھنے آنے لگے۔ جوتی کے دل میں خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں پچھلی زندگی کے جنم میں واپس نہ جانا پڑے۔ اس کی سوتیلی ماں اور سوتیلا ماموں یہ دوسرا جنم بھی چھین لیتے۔ وہ اب کسی صورت اس دوزخ میں جانے کو تیار نہیں تھی۔ وہ مر گئی تو اس کے سہاگ کا کیا ہوگا، اس بھید کا کیا ہوگا جس کے لیے قدرت نے اسے دوسری زندگی عطا کی ہے۔ ایسا حادثہ تو شاید ہی قسمت سے کسی کو پیش آتا ہو۔ جوتی نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ وہ اپنے شوہر کو تلاش کرے گی، شانتی نگر کی ایک ایک گلی، ایک ایک کوچے سے اس کا پتہ پوچھے گی۔ اس کے نقش قدم کے سہارے وہ ایک دن منزل تک پہنچ جائے گی۔ آخر وہ کب تک نہیں ملے گا؟ محبت کی خاطر تو لوگ 7 سمندر بھی عبور کر لیتے ہیں، یہ تو صرف ایک شہر کی بات ہے۔ وہ شانتی نگر جائے گی، اب وہ اس خطرے میں نہیں رہے گی۔ اس جنگل سے وہ کل صبح تڑکے ہی ایک طائر کی طرح اڑ کر گم ہو جائے گی۔